Okay. So till now what we have seen uh, the one normalization where we have seen the first normal form, second normal form, third normal form, and BCNF. Okay, and we have also seen that what are the problems that may arise when a relation is not in particular normal form, and uh, we we have to bring our relation in at least up to 3NF when we are developing an application for particular organization. Okay, and it is usually happens that whenever you bring one of your relation in 3NF, it most of the time automatically comes in BCNF as well. In some cases you have to bring it explicitly, है ना? And we have also seen that what are the problems that actually arise when a relation is not in BCNF, and how we resolve it. And we have also seen that if a relation is in 3NF, it is not necessary that it will always be in BCNF. However, reverse is always true. When if a relation is in BCNF, it will always be in 3NF, है ना? And we have also seen that it is always possible to have a relation which is in 3NF, and it is also lossless and privacy preserving. But in case of BCNF, it is not always possible. In some cases we may not be able to find out a relation which is able to preserve all the function dependencies. ठीक है, बाकी लॉसलेस तो मिल जाता है, बट एफडी प्रिजर्विंग हमेशा BCNF के केस में नहीं मिलता है. Okay, so all these we have discussed. Now we are going to see something more about the function dependencies. So that means we are going to discuss some theory of FDs. Functional dependencies. We have seen a lot of concept related to FDs, but it is always a good idea that you should be able to have some understanding of function dependencies theory as well. So it will help you understanding normalization in a better way, or you can also will be able to have some good hands on normalization. Okay, so let's see what are the theories. Actually, when you have a set of FD, let's say F is some set of FD on some relation, R is a set of FDs on some relation RR. I am writing like that. So R का मतलब this is an instance and this is the schema. Now actually we know that F is a kind of constraint that you apply on your relation. So it is actually a set of semantic constraints, है ना? सीमेंटिक कंस्ट्रेंट आप जानते हैं कि एफडी क्या होती है, एक टाइप की का सीमेंटिक कंस्ट्रेंट है, सेट ऑफ सीमेंटिक कंस्ट्रेंट्स ऑन आरआर. ओके, नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि सपोज वी नो सम एफ, नाउ इज इट पॉसिबल दैट देयर आर सम मोर एफडीज दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस एफ. इसमें एफ में आपके पास यू हैव सम सेट ऑफ एफडी, लेट्स से 2 3 4, or maybe let's say we have a set total k FDs. Now is it possible to have some more FDs from these k FDs that are actually also being held on this schema? So what I'm trying to say is that is there any way to find out some more FDs from a given initial set of FDs? So suppose we are given an initial set of FDs that we know that these FDs are actually being hold on R. Now we want to know is there some any set of FDs जो ऐप में नहीं है but they are also being satisfied by R.
and how to find if such FDs are there, can we find out those FDs from the FDs in set F? So these are the questions that we need to see or understand. So we say that, so there is a small definition that we need to discuss. We say that a function dependency, let's say some alpha determine beta, is implied by a set of FDs, let's say F have some set of FDs, okay, which is being satisfied on this R, and we say that this set of FD implies this one, okay, or you can write like that, implies alpha determine beta if all the relations इंस्टांस जो ऐप को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इसको भी सेटिस्फाई करें. दिस इज सिंपल डेफिनेशन. लेट मी रिपीट अगेन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट लेट्स सपोज वी हैव ए सेट ऑफ एफडीज एफ, ठीक है. वी हैव आइडेंटिफाइड सम एफडीज, नॉट ऑल, ठीक है, कुछ एफडीज हमने निकाल ली. सो एफ इज सम इनिशियल सेट ऑफ एफडीज जो अपने ओबियस थी, आपने निकाल लिया आसानी से. नाउ वी से दैट दिस सेट एफ logically implies some FD alpha determines beta on this set R, where you know that alpha is subset of R and beta is also subset of R. So R क्या है आपकी schema. Okay, so we say that this set of FD implies alpha beta if all possible relations जो इस R पर हम schema पर define कर सकते हैं वो ऐप को अगर satisfy कर रहे हैं, then they also satisfy this FD. Then we say that this set logically implies these FDs. ठीक है, logically implies, so F logically implies this alpha determine beta. Okay, so this is a term that we will use often, quite often. So मतलब यह है कि अगर so indirectly अगर आप कहें तो ये सेट इस FD को imply कर रहा है. इसका मतलब we can derive, एक और वे में we can derive this FD from these set of FDs also actually. Okay, टेक्निकली दिस एफ इज, अगर ये एफ आर पर सेटिस्फाई हो रहा है तो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि दिस सेट इज लॉजिकली इंप्लाइंग दिस सेट ऑफ एफडीज. नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि इज देयर एनी वे टू फाइंड आउट सच टाइप ऑफ एफडीज फ्रॉम दिस गिवन एफ. एफ में आपके पास कुछ सेट ऑफ एफडीज हैं, क्या आप इस तरीके से और एफडीज निकाल लेंगे जो इम्प्लाई होती हैं, दैट मीन्स ये सेट और इम्प्लाई करता है. सो द थ्योरी ऑफ एफडीज हेल्प यू इन डूइंग दैट. ठीक है, so there are actually some set of rules that are used to identify those kind of FDs. So first set of rules that are given by Armstrong are known as Armstrong's axioms. Okay, okay, so these rules were given by this person Armstrong, and to honor that person the axioms have been given name Armstrong's axiom. Okay, so Armstrong have given following 3 rules that can be used to derive some more FDs that are valid. Okay, so here are those rules. Number 1, first rule is called reflexivity rule. We will not prove these rules, ठीक है, but we will just use those rules. So what this rule says that if alpha is a set of attributes and beta is some subset of alpha, then alpha determines beta holds. So what this rule is saying,
This rule is saying actually every set of attributes actually functionally identify its subsets of attributes. This is that rule. Let me explain again what this rule is saying. So suppose that alpha is some set of FDs, that is so ध्यान रखना है R is our underlying schema. So schema means the set of attributes in the relation. It may be a instructor table. So instructor table में R क्या होगा? ID, name, department name and salary. So alpha is some subset on R, and let's say beta is some subset of alpha. So alpha R का subset था and beta is also the subset of alpha. Then alpha determines beta holds. This rule says that. So this rule आप देख सकते हैं कि beta is actually the subset of alpha. So what this rule is saying actually कि a set of attributes automatically satisfies, functionally determines its any subset. Okay, so you can say that for example अगर आपके पास R में ये relation, ये attributes हैं A B C D 4 and आपने alpha ले लिया let's say BC, then आपके बीटा क्या क्या हो सकता है? You can have B, you can have C and phi भी हो सकता है, but we are not considering phi or BC. So it is, this rule is saying that कि BC will determine B, functionally determine, sorry let me write it properly, BC will functionally determine B and BC will functionally determine C and BC will also functionally determine BC. So you know that all these function dependencies are trivial FTs. Okay, we have seen the definition of trivial function dependencies. So by using reflexivity rule actually you can derive all trivial kind of function dependencies. So okay, so you will not have use this rule very often because because it gives us all the trivial kind of FDs, and you know that trivial kind of FDs are not of our interest. We use only just non-trivial function dependencies for doing normalization. But this is a rule that will give you kind of all kind of trivial function dependencies if you have some initial set of FDs. Now there is one rule, second rule, that is called augmentation rule. So let me write this rule and then I will explain you what is the meaning of this rule. So what this rule says that if, let me check the color. If alpha functionally determines beta, now alpha beta के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, you know what are they. If alpha determines beta holds and gamma is a set of attributes, okay, you should remember that gamma is again a subset of R. Okay, gamma is a set of attributes. Then alpha, gamma alpha, gamma beta holds. So this is just a kind of augmentation. So this rule says that if you have this FD and gamma is some subset of attributes, so we can incorporate gamma in both of the sides. Now can you understand the meaning of this? गामा अल्फा का मतलब है गामा और अल्फा का यूनियन, गामा और बीटा का मतलब है गामा और बीटा का यूनियन.
क्योंकि यू नो दैट ऑल दीज आर दिस, इस साइड भी सेट होते हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, दिस इज ऑल्सो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. सो दिस इज ए ऑगमेंटेशन रूल. सो वी सेज दैट इफ यू हैव सम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, आप एक एफडी के दोनों साइड उसको इनकॉर्पोरेट करके, ऐड करके you can have a new kind of FD. So for example, suppose that you have a function dependency, let's say b determines c, and आपके पास एक एट्रीब्यूट और स्कीमा में अवेलेबल है, let's say a, या सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है, a हो सकता है, ac हो सकता है, cd हो सकता है, एंड सो ऑन. सो आप दोनों साइड a को ऐड कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे लिखा है मैंने अल्फ गामा को इस साइड, लेकिन इट डजेंट हैव बिट सिग्निफिकेंस, बिकॉज ए बी लिखी है या बी ए सी लिखी है, एक ही बात है. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज दिस इज सेट, सो यू कैन राइट दिस एफ डी लाइक दैट, ए कॉमा बी. सो इन रियलिटी ये एफ डी ऐसे है, ए कॉमा सी. सो नाउ यू मे हैव अंडरस्टूड दैट देयर इज नो मीनिंग ऑफ ऑर्डर. बी लिखी है, ए बी लिखी है या बी ए लिखी है, देयर इज नो इशू एक्चुअली. Okay, so what augmentation rule is saying? It is a very simple rule. It is just saying that if you have some set of attributes and you have one FD, so you can union that attribute in both the sides. So you will get a new valid FD. So this is also, so this is a rule that is quite oftenly used to generate new kind of FDs. Okay. Now let's come back and let's talk about third rule. So third rule is called transitivity rule. So this rule is actually about transitive function dependency actually. So what this rule says if alpha determines beta holds, so there is a FD of this kind and beta determines gamma holds, then alpha determines gamma holds. So this says that if we have this FD and this FD, then by just using transitive rule we can derive one more FD that will also be a valid FD. Okay, so आप देख रहे हैं alpha determines beta, beta determines gamma, that means alpha will determine gamma. And you know that we have used this FD or this rule actually. This rule is being used in third NF, है ना. थर्ड NF में हम इसकी बात करते हैं. So if any relation is having showing transitivity rule in this FD set, then we say that our relation is not in 3NF, and हम उसी को फिर रिजॉल्व करते हैं कि ये transitivity हट जाए. Okay, so this is the transitivity rule that also gives us one more set of FDs. Okay, now it is said that these rules, Armstrong rules, are sound and complete. Armstrong rules और एक्जियम्स बोलते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग एक्जियम्स आर sound and complete. So what is the meaning of sound? Sound means these rules will only give you the valid FDs. Okay, these rules will give you valid FDs. कोई भी invalid FD कभी भी गलती से आपको नहीं मिलेगी. Okay, then second, complete. Complete means you don't need any other rule, additional rule, to derive all possible FDs from a given set of FDs. तो आपके पास एक सेट ऑफ FDs है और आप उससे ऑल पॉसिबल FDs निकालना चाहते हैं, तो आप इन्हीं तीनों रूल्स को यूज करके निकाल सकते हैं. सो दैट मीन्स दीज रूल्स आर कंप्लीट. वी डू नॉट नीड एनी अदर रूल. ओके, so this is the meaning of Armstrong rules. So we will not prove that these rules, but you should know that you can use these rules to derive many FDs that will be valid also. So now आपका काम क्या होगा? अगर आपको एक सेट ऑफ FDs निकालना है एक रिलेशन पर, तो आप कुछ इनिशियल FDs आइडेंटिफाई कर लीजिए
एंड देन बाकी की इन रूल्स को लगा करके निकाल लीजिए. ओके, नाउ देर आर सम मोर रूल्स in addition to these Armstrong axioms. So let's talk about them. One more rule is called union rule. ये Armstrong axioms के पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, but these are also valid rules. What union rule says that, so union rule says that if alpha beta holds and alpha gamma holds, then alpha beta gamma holds. So this rule is very simple and it is very oftenly used. What this rule saying कि अगर आपके पास दो FD हैं जिसमें दोनों साइड में लेफ्ट साइड मैच कर रही है, इनमें आपस में ये इनमें कुछ कॉमन भी हो सकता है, डिसजॉइंट भी हो सकती है राइट साइड. ओके, देन आप इन दोनों को कंबाइन करके ये FD बना सकते हैं. सो कंबाइन करने का मतलब एक्चुअली क्या, हमने लेफ्ट साइड का यूनियन कर लिया. तो आपको मालूम है लेफ्ट में अल्फा है, ये सेट होता है तो दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, इट विल रिमेन अल्फा, बट वी यूनियन बोथ ऑफ दीज, सो वी विल गेट ए न्यू FD. So this is also rule that is very often used, union rule. ठीक है, आपको हालांकि आपको याद रखना है कि यूनियन रूल अगर नहीं भी आप यूज करेंगे, नेसेसरी नहीं है ये रूल यूज करना, लेकिन एक्चुअली क्या होता है आर्मस्ट्रांग एक्सियम्स कई बार ये होता है कि आप केवल यू कैन नॉट इमेजिन कि कुछ और FDs निकाली जा सकती हैं. आर्मस्ट्रांग रूल से सारी FDs निकाली जा सकती हैं, बट समटाइम्स इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट सम मोर FDs. ओके, so these rules actually make your task bit easy. ठीक है, हालांकि इन रूल्स की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आप टेक्निकली देखें, थ्योरेटिकली देखें कि इनकी मदद से ऐसी कोई FD नहीं है जो हम आर्मस्ट्रांग से नहीं डिड्यूस कर सकते, बट समटाइम्स हमें डिफ़िकल्टी आएगी इमेजिन करने में कि ये भी FD निकाली जा सकती है. ओके, सो दीज रूल्स विल हेल्प यू टू मेक योर टास्क मोर ईजी. ठीक है, सो दिस इज़ यूनियन रूल. And then there is one more rule, that is decomposition rule. Decomposition rule, and what this rule says, let's see. This rule says that if alpha determines beta gamma holds, then alpha determines beta holds and alpha determine gamma holds. So you can see that both rules are complement to each other. इसमें आप दो FDs को कंबाइन करते हैं, इसमें आप क्या कर रहे हैं, ब्रेक करके दो FD बना रहे हैं. सो अल्फा डिटरमाइंस बीटा गामा है, तो आप इन दोनों को पार्ट्स को सेपरेट करके दो FDs बना सकते हैं या मल्टीपल बना सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रूल, जिसमें आप राइट हैंड साइड को डिकम्पोज कर सकते हो. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड कॉमन रहेगी, राइट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगी. सो दिस इज द डिकम्पोजिशन रूल. सो दिस रूल ऑल्सो वी यूज वेरी ऑफन. Now there is one more rule that may be used, but बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता इसका. Pseudo transitivity. So this is not a transitive rule, but since it looks like a transitive rule, so that's why we call it pseudo transitive rule. So this rule says that if alpha determines beta holds and gamma beta determines delta holds, then ये हम ये बीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस कर देते हैं और एक नई हमें FD मिल जाएगी. सो देन
अल्फा गामा डिटरमाइंस डेल्टा होल्ड्स। ठीक है, तो ये रूल में हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, आपके पास सपोज दो एफडी है, अल्फा डिटरमाइंस बीटा एंड गामा बीटा डिटरमाइन डेल्टा। तो यहाँ पे ये नोटिस करिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड में बीटा आ रहा है और इधर लेफ्ट हैंड साइड में बीटा आ रहा है। सो व्हाट यू कैन डू, ये जो ना हम बीटा, इस बीटा को अल्फा से यहाँ रिप्लेस कर देंगे और वी विल गेट ए न्यू एफडी एंड दैट विल बी ए वैलिड एफडी बिकॉज दिस इज द सूडो ट्रांजिटिव रूल। ठीक है, तो सूडो ट्रांजिटिव रूल थोड़ा सा ट्रांजिटिव की तरह दिख रहा है, that's why we call it pseudo transitive. So these are the three additional rules that can help you to identify some more FDs. Now let's have one example that will help you to understand those rules. So suppose that you are given a schema or relation R, which schema is like that: A B C G H I. ठीक है, सो ये आपके बुक का एग्जाम्पल है, आई एम नॉट टेकिंग एनी न्यू एग्जाम्पल, इट इज अवेलेबल इन बुक। नाउ सपोज दैट दिस इज अ रिलेशन स्कीमा, जिसमें आप रिलेशन है, आर इज अ रिलेशन एंड दिस इज द स्कीमा ऑफ दैट रिलेशन एंड लेट्स अज्यूम वी हैव ए इनिशियल सेट ऑफ एफडीज एफ सच दैट कि वी नो कि ये एफडीज होल्ड हो रही हैं इस रिलेशन पर। ए डिटरमाइन बी, ए डिटरमाइन सी, CG determine H, CG determines I and B determine H। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, इसमें फर्दर और एफडीज निकालनी है। सो यू हैव द रूल्स, you know the rules and try to find out some more FD. So let me demonstrate some examples and then you can work with it. So you know that we have this FD, A determine B and A determine C. So since A determines B and A determines C and लगा सकते हैं बीच में, this implies A determine BC. Why? How? Which rule I am using? साइड में आपको लिख देना है। जब भी आपको इस तरीके का एक प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करने को दी जाएगी तो आपको बताना पड़ेगा कि विच रूल इज यू आर अप्लाइंग। यू नो दैट कि अगर दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड मैच कर रही हो तो आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड का यूनियन कर दीजिए और राइट साइड का भी यूनियन कर लीजिए। सो ए का यूनियन ए आएगा, बी और सी का यूनियन बी सी आएगा। सो दिस इज वाई यूनियन रूल। वी हैव आइडेंटिफाइड वन मोर एफडी, ए डिटरमाइन बी सी। नाउ सिमिलरली यू कैन अप्लाई यूनियन रूल हियर एज वेल। दोनों साइड सेम मैच है, सेम एफडी है। सो लेट मी चेंज द कलर। सो वी हैव one FD CG determine H and CG determine I. So we can have a new FD CG determines HI. ठीक है, again which rule we are using? Union rule. ठीक है, any other rule we can use? Now you can see that A determines B and B determine H. So since A determine B we have and we also have B determine H, this implies A determines H. Which rule we are using? Transitive. Okay, now you may be saying that we have one more FD, A determine B, A determine H. So we can deduce one more FD. ठीक है, ध्यान रखना है जो नई FD आप निकाल रहे हैं, you can also use them to identify more FD because this is a valid FD है। ये नहीं है कि नेसेसरी ऐप में ही है उन्हीं से हम निकालेंगे। We can use these out FDs that we have also received. So now we have since A determine B and A determine H, so what we can get? A determine BH. Which rule we are using? Union.
Okay. Similarly, we have A determines C and A determine H, है ना? Let me check. We have A determines C and A determine H. This implies A determines CH. Which rule? Again union rule. Okay. One thing we can also do here, what you see here, we can apply transitive rule here, है ना, pseudo transitivity, sorry. So we have A determines C, comma CG determine H. This implies आप ये जो C है इसकी जगह पे A रख दीजिए, तो ये हो जाएगा AG determine H. Which rule? Pseudo transitive. We can also apply this rule one more time. AC और यहाँ पर भी, इसमें भी A determines C and we have CG determines I, sorry H लिख दिया मैंने. So we can replace this C by A, so we will get AG determines I. Again same pseudo transitivity. Now we have one more rule, one more option to apply. Union. Again दोनों साइड लेफ्ट साइड सेम मिल रही है आपको. So we have AG determines H and AG determine I. So we have AG determine HI union. डिकम्पोजिशन की ज़रूरत नहीं पाई अभी हमें, यहाँ डिकम्पोजिशन नहीं लगा पाए. ओके, सो कैन बी आइडेंटिफाई सम मोर FDs? You have to think. So I have demonstrated you application of those rules that can help you to identify some more FDs if you are given a set of FDs. Now we need to talk about one more definition, that is closure set of FDs. That is this definition is important. It is have a bit application. Closure set of function dependencies. मैं short में FD लिख रहा हूँ. So suppose you are given a set F फंक्शन डिपेंडेंसीज का सेट किसी स्कीमा पर दिया है. सो आर लेट से कैपिटल आर ये एक रिलेशन है जिसकी कैपिटल आर स्कीमा है, एंड एफ इस पर सेट ऑफ FDs है, ए सेट ऑफ FDs being satisfied by R. Okay. So app closure of F is denoted by this sign. App के ऊपर हम प्लस लगा देते हैं. So this is called closure set of FDs on F. ठीक है. So what is app closure? App closure is actually set of, so F closure is a set of all possible FDs that
are implied by the FDs in F। ठीक है, तो एफ क्लोजर किसी एक एफडी के सेट के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है, ये याद रखना है। सो किसी भी रिलेशन पर एफ क्लोजर का मतलब हो गया कि उस सेट में जितनी भी पॉसिबल एफडीज हैं उनका सेट। सो वी आर काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ यूनिवर्सल सेट फॉर ए रिलेशन, कि इस रिलेशन पर ये पॉसिबल सेट ऑफ एफडीज हैं, ऑल पॉसिबल एफडीज जो होल्ड होंगे, या टोटल सेट ऑफ एफडीज ये हैं जो होल्ड हो रही हैं। नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस, as we have seen by the rules, there are some FDs that are very obvious, आप इजीली उनको देख सकते हैं, जस्ट रिलेशन को देखेंगे एंड जस्ट थोड़ा सा एट्रीब्यूट्स के इंट्रैक्शन को, वैल्यूज को देख करके यू विल आइडेंटिफाई सम सेट ऑफ FDs। बट ऑल पॉसिबल सेट ऑफ FDs निकालना थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, और ऑल पॉसिबल FDs की काउंट काफ़ी ज़्यादा होती है। खुला है, सॉरी। So app closure is a set of all possible FDs that can be that are satisfied by a relation schema. Okay, so now question arises, why we are interested in the app closure? So actually it is obvious that we want to know what is the all possible set of FDs that are satisfied with this relation, because this is a each FD is a kind of constraint on a relation R, and we generally want to ensure that any update on the relation satisfies those FDs that are in app closure. So at any update we would like to check कि app closure में जो FDs हैं वो सबके सब satisfy हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, है ना। we would like to have, because we do not want to violate any kind of FDs, because these are consistency constraints. So we want to stop any kind of inconsistency in our database after any modification. Okay, so in order to ensure that, we need to check that all FDs are being satisfied after updation by a relation. Okay, so now question arise होता है कि ऐप क्लोजर निकालेंगे कैसे। तो ऐप क्लोजर निकालने के लिए जो सिंपल मेथड यही है कि वी जस्ट ट्राई टू अप्लाई दीज रूल्स वन बाय वन until this is an exhaustive method. There are some other methods are also there, you can identify, you can see those in your book. So what we just try to do कि जो FDs हमारे पास initial set of FDs we have, we just try to apply all these rules that we have. Actually हमारे पास mainly reflexive rule जो है ना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, because these rules are that these rules give us only trivial FDs, and we are not interested in trivial FDs, we are interested in non-trivial FDs. So we can apply all these rules one by one and try to identify new FD. If we are not able to identify new FD, that means we are not able to change the FD set, that means we are done. So we have identified app closure. Now actually problem क्या होती है कि app closure is a very large set, or it may be a large set of FDs. So we would not like to check all those FDs at the time of modification, because अगर हम modification के टाइम पर each FDs को चेक करेंगे, then what will be the problem? Your modification process will become slow, है ना, because आप केवल उसी modification को allow करेंगे that is satisfying all the FDs. So इसलिए आपको सारी FDs को चेक करना पड़ेगा, that will impose some cost on you. Okay, so modification की वजह से क्या होगा, modification process may be initiated by some application or transaction, so transaction का response time increase हो जाएगा. So that's why our job is to identify a set of FDs which is minimal set of FDs. So हम generally एक ऐसा set identify करना चाहते हैं that is equivalent to your F plus. ठीक है, so इसमें जो FDs हैं ये बहुत मिनिमम है. ओके, F प्लस में तो बहुत सारी FDs हैं, बट एक्चुअली व्हाट वी वांट टू सी दैट कि ये F प्लस और ये F दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स इक्वलेंट है. इक्वल का मतलब इक्विवेलेंट. इक्वल का तो मतलब ये हो गया कि दो सेट इक्वल कब कहलाते हैं, जब उनमें जो एलिमेंट्स हैं एकदम एग्जैक्टली सेम हो. लेट्स से ये
ये दी सेट आर इक्वल। इक्वलेंट का मतलब होता है आइटम्स डिफरेंट हो सकते हैं बट दो सेट स्टिल आर इक्वल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि यहाँ पर सपोज आपके पास एफ डीज है एफ में, लेट से लेट मी राइट एफ डीज लाइक दैट अल्फा 1। एफ डीज के लिए मैं नोटेशन यूज कर रहा हूँ अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा के। सो के एफ डीज का सेट ये है, और ये जो सेट है आपका, इसमें आपके पास बहुत सारी एफ डी हैं। लेट्स से मैं इनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बीटा 1, बीटा 2 एंड सो ऑन बीटा एम, वेयर एम इज वेरी वेरी लार्ज देन के। ओके, सो नाउ वी विल ओबियसली अगर हम एक एक करके कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि ये सेट और ये सेट दोनों डिफरेंट लग रहे हैं देखने में। इन बाय जस्ट लुकिंग दी सेट विल बी लुकिंग वेरी डिफरेंट। ओके, बट एक्चुअली इट मे बी पॉसिबल दैट कि आप इन एफडी से ये सारी एफडी निकाल सकते हैं। दैट मीन्स ये सेट एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं। इसकी एफडी से आप ये निकाल सकते हैं और इसकी एफडी से ये एफडी निकाल सकते हैं। सो वी आर इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग सच सेट जो आपके क्लोजर के इक्विवेलेंट हो, मिनिमम हो और क्लोजर के इक्विवेलेंट हो। सो और एफडी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। तो इस टाइप के सेट को जनरली हम बोलते हैं कैनोनिकल कवर। सो कैनोनिकल कवर आपके क्लोजर के इक्विवेलेंट होता है, और इसमें ये जो एफडीज का सेट है ये मिनिमल होता है, मिनिमल सेट ऑफ एफडीज होता है, और जितनी भी एफडीज है वो सिंपल काइंड ऑफ एफडीज होती हैं। तो सिंपल काइंड ऑफ एफडीज का मतलब ये है सिंपल टर्म में कि आप लेफ्ट से भी कोई एट्रीब्यूट नहीं निकाल सकते, राइट से भी एट्रीब्यूट नहीं निकाल सकते। ये ठीक है, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। आई हैव जस्ट कंप्लीट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, आई विल शेयर यू द लिंक। that video is available on my channel, so I will not teach that thing in detail, I just giving you an introduction. So what we are interested in identifying canonical cover. Now canonical cover निकालने से फ़ायदा क्या होगा? जब भी कोई मॉडिफिकेशन होगा हम एक स्मॉल सेट ऑफ एफडीज को चेक कर लेंगे, और अगर कोई मॉडिफिकेशन इन सेट ऑफ एफडीज को सेटिस्फाई कर देता है तो इसका मतलब ये है कि ये सेट की एफडीज जो ना वो भी अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। सो इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा कि हमने एफडीज की जो सारी कंस्ट्रेंट्स लगा रहे थे, एफडी ऑल कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स हैव बीन सेटिस्फाइड, वी विल अज्यूम दैट, और एक्चुअली दे आर बीइंग एक्चुअली ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड, बिकॉज अगर ये सेट सेटिस्फाई हो गया दैट मीन्स ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा, बिकॉज बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट। सो व्हाट विल बी बेनिफिट, हमें कम सेट ऑफ एफडी चेक करके हम इंश्योर हो जाएंगे कि एवरीथिंग इज फाइन। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ कैनोनिकल कवर। सो जनरली जब हम एफडीज के सेट टेस्ट करते हैं तो वी कैन आइडेंटिफाई कैनोनिकल कवर। सो ये सब आपको नहीं करना है, इट इज़ बीन डन ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपके रिलेशन में जो आप डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली ये इम्प्लीकेट हो जाता है, एंड देन कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स को चेक करना डेटाबेस का काम है। ओके, सो देयर आर सर्टेन एल्गोरिथम्स आर देयर दैट कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई दिस कैनोनिकल कवर। ओके, मैंने उस वीडियो में एक एग्जांपल लेकर के भी दिखाया हुआ है, सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। ओके, सो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स को चेक करने की कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द रोल ऑफ app closure and canonical cover. Now we are going to discuss one more topic that is also very important, attribute closure. So let's say suppose alpha is some set of attributes, that is alpha is proper subset or a subset of R. ओके, सो अल्फा इज सम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और इसके क्लोजर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो दो तरीके के क्लोजर होगा, एक है एफडी के सेट का क्लोजर जिसे हम एफ प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एट्रीब्यूट क्लोजर है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना है। ओके, सो एट्रीब्यूट क्लोजर मीन्स द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स it actually contains a set of attributes, and what attributes will come here in that कि ये जो सेट है इट विल बी सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स, सेट ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स, और इट कंटेन्स ऑल दो एट्रीब्यूट्स दैट आर फंक्शनली determined by
अल्फा। ठीक है, सो अल्फा क्लोजर का मतलब क्या होगा, अल्फा क्लोजर में वो सभी एट्रीब्यूट्स आएंगे जो अल्फा से फंक्शनली डिटरमाइन हो रहे हैं। ओके, सो आपको मालूम है कि अगर अल्फा क्लोजर आर के बराबर हो जाए, आर का मतलब पूरे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आ जाएं रिलेशन में जितने हैं, तो आप अल्फा क्लोजर को, अल्फा को की बोल सकते हैं। देन अल्फा विल बी द सुपर की। और ओबियसली ये अल्फा मिनिमम है, अगर मतलब इसके किसी सबसेट में भी सबसेट का क्लोजर आर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज मिनिमम, देन वी कैन कॉल इट कैंडिडेट की। और फिर इसी में से हम एक को प्राइमरी की भी बना सकते हैं। सो दैट मीन्स अगर हम एट्रीब्यूट का क्लोजर निकाल लें तो हम की पता कर सकते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट का क्लोजर हमें बताता है कि ये एट्रीब्यूट कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ भी कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली अवेलेबल होगी, कुछ इनडायरेक्टली अवेलेबल होती है। तो कई बार हो सकता है कि ये ना दिखे कि अल्फा इस एट्रीब्यूट को भी डिटरमाइन कर रहा है, ये आपको नहीं पता था, लेकिन आप जब अल्फा का क्लोजर निकालेंगे तब वो आ जाएगा आपके सामने, और एंड यू विल एबल टू नो। सो दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द कैंडिडेट की। सो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल कि अल्फा क्लोजर कैसे निकालते हैं, एट्रीब्यूट क्लोजर कैसे निकालेंगे। ओके, सो हम यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपके पास था अवेलेबल। सो लेट मी रीराइट दिस एग्जाम्पल। मैं ये सेट दोबारा से लिख लेता हूँ, फिर हम इसमें क्लोजर निकालेंगे। सो आपके पास जो आर था वो क्या है, हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी जी एच आई, ठीक है, एंड एफ हमारे पास था सेट ऑफ एफडी जो हमें दिया है ए डिटरमाइन बी, ए डिटरमाइन सी, एंड सी जी डिटरमाइंस एच, सी जी डिटरमाइंस आई, एंड बी डिटरमाइन एच। ये सेट ऑफ एफडीज है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट क्लोजर ऑफ ए। सो एट्रीब्यूट का क्लोजर कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ, एल्गोरिथम की ज़रूरत नहीं है, जो प्रोसीजर है आप वो समझ लीजिए। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, आई विल जस्ट शो यू द स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ए का जब क्लोजर आपको निकालने को कहा गया, लेट्स से ए इज एट्रीब्यूट एंड ए का आपको क्लोजर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो इनिशियल सेट लेके चलेंगे, उसे हम जनरली आपकी जो बुक में एल्गोरिथम दी है उसे रिजल्ट से डिनोट करती है। सो रिजल्ट इज सम सेट, ठीक है। सो मैं उसको ए क्लोजर को इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंट, ठीक है, या एक टेम्परेरी हम सेट ले रहे हैं रिजल्ट। सो इनिशियली रिजल्ट में चूंकि हमें ए का क्लोजर निकालना है तो रिजल्ट में ए खुद रहेगा, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, स्टेप 1 यहाँ से हम शुरू करेंगे। नाउ आपको क्या करना है, इस सेट को ग्रो करना है। कैसे ग्रो करेंगे, सो इन ऑर्डर टू ग्रो दिस सेट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू लुक इनटू दिस सेट ऑफ एफडीज एंड फाइंड आउट करिए कि ये जो पोर्शन है इसमें जो सेट में कुछ भी अवेलेबल है अभी आपके टाइम बीइंग, वो किस एफडी के लेफ्ट में पूरा का पूरा अवेलेबल है, उस एफडी के राइट को हम इस रिजल्ट में यूनियन कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप्स, सो वी नो दैट ए डिटरमाइन बी, सो आप लिख सकते हैं सिंस ए डिटरमाइन बी दिस इंप्लाइज रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, ये यूनियन इसके राइट साइड एफडी की, ए आपका क्योंकि रिजल्ट में अवेलेबल है तो इसकी राइट साइड बी, सेट के फॉर्म में लिखना है इसको। सो रिजल्ट की जो वैल्यू है वो क्या हो गई आपकी, अब नई वैल्यू ए कॉमा बी, ठीक है। अब आगे की स्टेप में फिर से देखते हैं। अब आपके पास दो एफडी, दो सेट्स हैं इसमें, दो एक्चुअली कॉलम्स हैं ए एंड बी। सो अब आप देखिए किस एफडी के में लेफ्ट हैंड साइड में या तो ए आ रहा है अकेले या बी आ रहा है या दोनों ए बी, या इनका कोई प्रॉपर सबसेट आ रहा है। दैट मीन्स ये जो सबसेट है ना, रिजल्ट जो सेट बना हुआ है इसका कोई प्रॉपर सबसेट या सबसेट वो आपको किसी एफडी के लेफ्ट हैंड साइड में अगर मिलता है तो आप राइट हैंड साइड को भी रिजल्ट में इंक्लूड कर देंगे। सो आई हैव ए एफडी ए डिटरमाइन सी, सो दैट मीन्स इसका एक प्रॉपर सबसेट, एक एट्रीब्यूट ए आ रहा है यहाँ पर, सो वी कैन इंक्लूड सी इन दिस सेट। सो सिंस ए डिटरमाइन सी, ठीक है, वी हैव ए डिटरमाइन सी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, वर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। सो दिस इंप्लाइज रिजल्ट
इक्वल टू रिजल्ट की करंट वैल्यू लिखना है ए कॉमा बी यूनियन, इसकी वजह से राइट साइड सी ये भी यूनियन हो जाएगा। सो वी हैव ए कॉमा बी कॉमा सी इन दिस सेट। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले आपको देखना है क्या किसी एफडी में ए आ रहा है अकेला, या बी आ रहा है अकेला, या सी आ रहा है, या ए बी आ रहा है, या ए सी आ रहा है, या बी सी आ रहा है। तो अगर किसी एफडी के लेफ्ट में इनका कोई कॉम्बिनेशन सबसेट मिलता है इस सेट का रिजल्ट का, तो आप राइट साइड को इस सेट में फिर से इंक्लूड कर लेंगे। सो नाउ वी सी दैट वी हैव बी डिटरमाइन एच, है ना। सो बी की मदद से दिस इम्प्लाइज रिजल्ट में हम सी एच को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो ए बी सी यूनियन एच, सो वी हैव ए बी सी एंड एच, ठीक है। नाउ अब हमारे पास रिजल्ट का सेट ये है। अब देखिए इनका कोई कॉम्बिनेशन या ये इंडिविजुअली किसी एफडी के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं क्या, पूरा आना चाहिए। सो अब आप देखेंगे दो ही एफडी बची हुई हैं, सी जी एंड सी जी, लेकिन जी आपके यहाँ इंक्लूडेड नहीं है इस सेट में। सो हम एच को शामिल, तो एच तो ऑलरेडी शामिल हो चुका है, लेकिन आई किसी वजह से नहीं आ रहा है। अगर हमारे पास इस सेट में जी होता तो सी और जी से आई भी आ जाता, लेकिन नाउ यू आर सीइंग दैट वी आर नॉट एबल टू इंक्लूड आई। सो जो ए का क्लोजर है अब यहीं रुक जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू ग्रो दिस सेट फर्दर। हमने सारी एफडी देख ली, लेकिन वी आर नॉट एबल टू ग्रो दिस सेट फर्दर। सो अब ये सेट ग्रो करना बंद कर गया। सो दैट्स वाई वी विल डिक्लेयर दैट ए क्लोजर इज ए बी सी एंड एच। और ए क्या डिनोट कर रहा है, आप ए जो है ना, ए खुद को फंक्शन डिटरमाइन करता है, बी को भी डिटरमाइन करता है, सी को भी डिटरमाइन करता है, एच को भी डिटरमाइन करता है और इन इसके पूरे सबसेट्स को भी डिटरमाइन करता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ए क्लोजर। सो ए क्लोजर मीन्स ए फंक्शनली डिटरमाइन ए बी, इट कैन डिटरमाइन बी सी, ए फंक्शनली डिटरमाइन सी एच, ए फंक्शनली डिटरमाइन बी सी एच। सो ऑल दीज एफ डीज आर अवेलेबल, ठीक है। सो इससे पता चल जाएगा आपको ये कौन कौन से सेट्स को फंक्शनली डिटरमाइन कर सकता है। सो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट बी क्लोजर। बी क्लोजर निकालने के लिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कुछ भी ऐसी चीज़ है, अब ये प्रोसीजर वाइज नहीं लिखूंगा, आई विल जस्ट राइट। आपको मालूम है बी क्लोजर में बी से शुरुआत करेंगे और बी की वजह से एच आ जाएगा, ठीक है, बी। और आपको मालूम है बी डिटरमाइन एच है, सो वी हैव बी एच। अब ज़रा देखिए क्या हम और इसमें कुछ इंक्लूड कर सकते हैं क्या। बी और एच कहीं लेफ्ट में आ रहा है क्या, अकेला बी आ रहा हो या अकेला एच आ रहा हो, या इनका कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है। सो दैट मीन्स बी का जो ना, बी केवल दो ही एट्रीब्यूट्स को फंक्शनली डिटरमाइन करता है, खुद बी को और एक एच को, ठीक है। दिस इज द बी क्लोजर। कैन यू फाइंड आउट द सी क्लोजर। सो सी के क्लोजर में एक तो सी रहेगा खुद, और क्या रहेगा, सी किसी में भी राइट साइड में नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स आप सी के क्लोजर को ग्रो नहीं कर सकते, तो सी किसी एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। सिमिलरली इफ़ यू ट्राई टू फाइंड आउट जी का क्लोजर, जी के क्लोजर में जी तो ओबियसली खुद होगा ही, क्योंकि हर एट्रीब्यूट खुद को डिटरमाइन करता है। ये और किसी को शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके सेट में अगर सी होता तो ये किसी को और डिटरमाइन कर सकता था। तो जी के क्लोजर में अकेले जी है और कोई नहीं है। अच्छा, कॉम्बिनेशन ट्राई करिए सी जी, सी और जी का क्लोजर निकालिए। सी और जी का क्लोजर में ओबियसली सी और जी दोनों एक साथ तो होंगे ही होंगे, है ना, क्योंकि हर एट्रीब्यूट खुद को डिटरमाइन करता ही करता है। अब आप देखेंगे सी जी मिलकर के एच को डिटरमाइन करता है, तो एच भी आ गया। ओके, नाउ सी जी एच, इनका कोई कॉम्बिनेशन एफ डी के लेफ्ट में आप देखेंगे सी जी यहाँ है, सो सी जी एच आई। तो सी और जी मिलकर के सी जी और एच और आई को डिटरमाइन करते हैं। आप देख रहे हैं ना, तो सी जी आपकी की है क्योंकि सारे एट्रीब्यूट्स नहीं आए यहाँ, ए भी आपका की नहीं है, सारे एट्रीब्यूट्स नहीं आए, क्योंकि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आए हैं, केवल ए बी सी एच। स्कीमा में आपके है ए बी सी और एच, जी और आई इसमें नहीं आए। अब आई का क्लोजर निकालिए। आई के क्लोजर में आई खुद होगा और कुछ नहीं आ पाएगा, ठीक है। सो इसमें हमें डायरेक्टली की नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब दिस एट्रीब्यूट, सो वी नीड टू कंबाइन
सम मोर एट्रीब्यूट्स। आपको मालूम है ए में ए बी सी एच आ जा रहा है, ए बी सी और एच आ जा रहा है, जी और आई नहीं आ रहा है। सो ए के साथ अगर हम जी इंक्लूड कर दें सपोज दैट, तो इसका क्लोजर निकालें तो क्या आएगा। अब आपको मालूम है ए के क्लोजर में तो ए बी सी एच आता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ए बी सी एंड एच, और ओबियसली जी भी आ जाएगा क्योंकि जी यहाँ हमने शामिल ही कर दिया है। लेकिन क्या अब हम आई लेके आ सकते हैं, सी जी डिटरमाइन करता है आई को, ठीक है ना, सी है यहाँ पे, जी भी है और सी जी मालूम है आई को डिटरमाइन करता है, तो आई भी आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं ए बी सी एच जी आई सारे एट्रीब्यूट्स आ गए आर के। सो दैट मीन्स दिस एट्रीब्यूट्स ए जी इज ए कैंडिडेट की। ठीक है, सो इस तरीके से हम कैंडिडेट की पता कर सकते हैं। सो नाउ अब आपके लिए होमवर्क है, आपकी बुक में कुछ ऐसी कोर्स की बुक है उसमें ऐसे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें आपको कहा गया है कि सेट ऑफ एफडीज दी है, इसमें प्राइमरी की निकालिए या कैंडिडेट की बताइए कौन कौन सी कैंडिडेट कीज है, तो वो आपको करना है। ठीक है, काफ़ी ईजी है एट्रीब्यूट क्लोजर, और एट्रीब्यूट क्लोजर एक तरीके से आपके लिए एक बहुत सिंपल मेथड है जिससे आप किसी भी रिलेशन की पता कर सकते हैं, कौन सा एट्रीब्यूट किसको फंक्शनली डिटरमाइन करता है ये भी पता कर सकते हैं, और नई एफडी भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको मालूम है ए क्लोजर में ए बी सी एच है, तो आप कह सकते हैं कि ए डिटरमाइन बी, ए डिटरमाइन सी, ए डिटरमाइन एच, सिमिलरली ए डिटरमाइन बी सी, ए डिटरमाइन सी एच, ए डिटरमाइंस बी सी एच। सो क्लोजर की मदद से आप सारे एट्रीब्यूट्स के क्लोजर निकाल लें तो बहुत सारी एफडीज भी आप निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट्स क्लोज।